So welcome everybody, and today we are going to start the second adhyay of Ashtanga Hriday. We have invested, not wasted, invested a lot of time understanding the first adhyay of Ashtanga Hriday, and today we are going to start with the second adhyay. Now the second name of the second adhyay is the Dinacharya Adhyay. Name of the second adhyay is the Dinacharya Adhyay. In first adhyay, we have already seen, and you must have already seen in the transitional curriculum which you have undergone, that Ayurveda is a special science because nowhere in the world there is a science to keep the healthy or maintain health in the healthy. Everybody talks about the patient. Nobody talks about the healthy person. So Ayurveda is the science which talks about a healthy person, how to keep him healthy. So swasthasya swasthya rakshanam, that is to maintain the health of a healthy person, is the first purpose of Ayurveda. Because सभी हेल्दी रहेंगे तो कोई डिसीज रहेगा ही नहीं, कोई डिसीज रहेगा ही नहीं तो लोगों को हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं है, ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, बेड्स फुल नहीं होंगे, ठीक है, आईसीयूज पूरा खाली रहेंगे. So maintain the health of the healthy is what is the main purpose of Ayurveda. Rather, that is the first purpose of Ayurveda. So after completing the Ayush Kami Adhyay, after understanding the different principles which Ayurveda is going to use, both for treating the patient as well as keeping the healthy persons healthy or maintaining the health of a person, we are now going to come to the first adhyay, which talks about the health of the person, that is Dinacharya Adhyay. Now what is Dina? Dina means a day. Now a day is made up of 24 hours. Ahoratra, what we call Ahoratra. So Ahoratra में क्या क्या चीजें करनी चाहिए या what all things we need to do in a day is what is given in the Dinacharya chapter. I am sure most of you might have gone a little bit more ahead of me and even ventured into the Dinacharya chapter, but that is good. I mean, reading before you come for the lecture is very good. So Dinacharya में पूरे दिन में स्वस्थ रहने के लिए, to maintain your health, what all things you need to do, या क्या क्या चीजें करनी चाहिए, that is all mentioned in the Dinacharya Adhyay. So din means a day or ahoratra. One ahoratra is made up of 24 hours. However, Ayurveda has a different. उस जमाने में घंटे नहीं होते थे. उस जमाने में क्या होता था? घटी, पल, नाडिका. But that is okay. That is a different way of calculating or measuring time. Right now, we are even good enough with whatever hours, minutes, and seconds. We are, as long as we are able to correlate कि एक घटी का मतलब 45 minutes. So as long as we are able to correlate, we can go with the hours, minutes, and seconds also. So in what part of the day, what has to be done to maintain the health is what is written in the Dinacharya Adhyay. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन के कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सब दिनचर्या अध्याय में बताया है. So Dinacharya can be, Dina means day and Charya means routine or lifestyle. The lifestyle or the routine we need to follow, the lifestyle or the routine we need to follow every day is known as Dinacharya. Now Dinacharya is the same throughout all 365 days in a year. However, as the season changes, they have one more charya which comes in the next chapter, that is the Rutucharya. दिनचर्या में क्या आएगा? दिनचर्या में आएगा कपड़े पहनने चाहिए. ऋतुचर्या में क्या आएगा? ऋतुचर्या में आएगा कौन से कपड़े पहनने चाहिए. दिनचर्या में क्या आएगा? खाना खाना चाहिए टाइम पे. ऋतुचर्या में क्या आएगा? कौन सा खाना खाना चाहिए कौन से सीजन में. दिनचर्या में क्या आएगा? सोना चाहिए. ऋतुचर्या में क्या आएगा? कौन से सीजन में दिन में सोना चाहिए, कौन से सीजन में दिन में नहीं सोना चाहिए. So all these things are divided into two parts, and they have mentioned first part in the Dinacharya chapter, which is the daily routine which is expected to follow. The people are expected to follow daily, and whatever
differences or whatever changes in the daily routine as per the different seasons will come in ऋतुचर्या. व्यायाम करना चाहिए इस दिनचर्या. कितना व्यायाम करना चाहिए, कौन से ऋतु में करना चाहिए, कौन से ऋतु में नहीं करना चाहिए, दैट इज ऋतुचर्या. मालिश करनी चाहिए, कौन से तेल से करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, कितने घंटे करनी चाहिए, किसके बाद करनी चाहिए, दैट इज ऋतुचर्या. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू रूटीन्स विच कीप द पर्सन हेल्दी. दिनचर्या में डेली रूटीन आता है, ऋतुचर्या में सीजनल रूटीन आता है. द चेंजेस इन द दिनचर्या एज पर द सीजन इज ऋतुचर्या. So now that we know what is dinacharya and ritucharya, let us discuss about what all things do we feel as per current lifestyle. Leave around whatever is given in the books. बुक में तो जो भी दिया है वो 6-8 हजार साल पहले का दिया है. What all things do we feel should be done in the day? हर रोज what all things do we feel should be done? तो क्या क्या करना चाहिए? start from your bed. तो दिन में सबसे पहले उठना चाहिए. ठीक है, उठेंगे नहीं तो दिनचर्या कैसे? Okay, so let me share the screen once again. I don't know why this disconnects. दिन में उठना चाहिए. So there will be some rules which are related to getting up. फिर उसके बाद हम दिन में उठ के क्या करते हैं? We go to the toilet. So some rules regarding toilets. Then what we do? Toilet जाने के बाद we brush. So there will be some, or we brush in the toilet. We can do two things together, no problem. We don't have time. So brushing के कुछ मुंह मतलब cleaning of the mouth is something which will come as a charya, or there will be some rules of cleaning the mouth. फिर क्या करना चाहिए? फिर we take a bath. So there will be some rules regarding स्नान. फिर क्या करना चाहिए? फिर we wear clothes and we get out. But Ayurved propounds that, आयुर्वेद ने बताया है कि सिर्फ स्नान करके शरीर शुद्धि नहीं, लेकिन इंद्रिय शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है. इंद्रिय शुद्धि, बिकॉज वी आर गोइंग आउट, वी विल यूज अवर इंद्रिय ऑल थ्रू आउट. तो आयुर्वेद ने इसीलिए मुख की शुद्धि, आंखों की शुद्धि, कानों की शुद्धि, बिकॉज स्नान इज व्हाट? स्नान इज स्किन की शुद्धि, नाक की शुद्धि. तो इंद्रिय शुद्धि के लिए भी अलग अलग चीजें बताई हैं. देन व्हाट वी डू? देन वी हैव फूड व्हेन वी आर हंग्री. तो फूड के बारे में भी कुछ रूल्स बताए हैं. फिर सम पीपल में मतलब रन, जॉग, एक्सरसाइज के बारे में भी कुछ रूल्स बताए हैं. उसके बाद कोई मालिश कर सकता है तो मालिश के बारे में कोई रूल्स बताए हैं. और फिर रात को कब सोना है उसके बारे में भी रूल्स बताए हैं. खाना कितना खाना है उसके बारे में भी रूल्स बताए हैं. तो ये तो सब रूल्स हो गए जो आहार और विहार के हैं, आहार और विहार के हैं. बट व्हाट अबाउट दोज रूल्स विच आर मानसिक, विच आर आचरिक, जिसका आचरण करते हैं? तो इन्होंने बहुत सारे रूल्स आचरण के भी बताए हैं जिनको सद्वृत्त कहा गया है. सद्वृत्त. नाउ ये आचरण के रूल्स मतलब who is Ayurved to tell me how should I think about or how should I work? तो इसका एक बहुत सुंदर लॉजिक डॉक्टर BM हेगड़े देते हैं. ईच इंडिविजुअल सेल इन योर बॉडी इज अ यूनिट. इट इज अ लाइफ, मतलब you can remove a cell from your skin and it is still alive. It can replicate, it can form different cells. So it is life, though it is a part of your body, but it is life. Now your body is a group of cells which functions together. मतलब लिवर के सेल्स अपने अपने बारे में सोचते ही हैं, मसल सेल्स के बारे में भी सोचते हैं. पेट के सेल्स अपने बारे में सोचते ही हैं, साथ ही साथ बाकी शरीर के सेल्स के बारे में भी सोचते हैं. कल को पेट के सेल ने सोचा कि नहीं मैं तो डाइजेस्ट करके किसी को दूंगा ही नहीं, या फिर इंटेस्टाइन के सेल ने सोचा कि मैं तो एब्जॉर्ब करूंगा लेकिन किसी को दूंगा ही नहीं.
लिवर के सेल ने सोचा कि मैं तो टॉक्सिन निकालूंगा, मैं तो टॉक्सिन निकालूंगा ही नहीं. So they think about other cells also. So your body is a group of cells which are working in tandem. Your body is a group of cells which are working together. अगर एक भी सेल ने दूसरे सेल के बारे में बुरा सोचा, तो what you get is a disease. So don't you think similarly the society is a group of people who is working in tandem? तो एक आदमी ने दूसरे आदमी के बारे में बुरा सोचा था, तो सोसाइटी, the health of the society will go away. Or maybe probably even the Dr. B.M. Hegde goes a step further to state that many of the diseases जैसे रक्त पित्त, रक्त पित्त में कहा गया है कि क्रोध ज्यादा करने से रक्त पित्त होता है. तो क्रोध क्यों? दैट क्रोध secretes hormones which are individually damaging the individual cells of your body. तो इसीलिए बहुत सारी चीजें उन्होंने आचरण के बारे में भी बताई है. दैट इज sort of personal health, but that also depicts how Ayurveda thinks about the societal health of that time. So let us go into one thing. This is a very small chapter. We will not go into very much detail, but we will definitely take each and everything which comes in the chapter, and we will try to correlate it with current conditions which are there, because that is more important. आप पेशेंट को या किसी हेल्दी आदमी को सभी चीजें करने को बोलोगे तो वो ही विल नॉट कम टू यू. बट वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इन टूडेज लाइफ हाउ इट कैन बी डन इज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इसीलिए वी विल टेक वन थिंग इन डिटेल. तो सबसे पहले गेट अप और फ्रेश अप. आयुर्वेद कहता है कि ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए. ना व्हाट इज ब्राह्म मुहूर्त? ब्राह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय के पहले 1.5 घटिका. सो इट इज समवेयर अराउंड 1.5 आवर बिफोर द सूर्य उगने के पहले 1.5 घटिका. सो 1.5 आवर बिफोर सूर्योदय. नाउ व्हाट पीपल क्रिब अबाउट इज व्हाट इज ब्राह्म मुहूर्त. ब्राह्म मुहूर्त कब आता है? 1.5 घटिका पहले आता है, या 2 घंटे पहले आता है, या 1 घंटा पहले आता है. See, all these things are useless in today's life. What is more important is ब्राह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए. You should get up before the sun sets in. And why is that? The reason, because we have already seen in first chapter that रात्रि का जो आखिर का काल है, रात्रि का काल कब खत्म होता है? रात्रि का काल तब खत्म होता है जब सूर्य का उदय होता है. तो सूर्य के उदय के बाद दिन चालू हो जाता है. तो रात्रि का जो आखिर का काल है, उस काल में कौन से दोष का डोमिनेंस है? उस काल में वात दोष का डोमिनेंस. और वात दोष किसके लिए कारणीभूत है? व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वात दोष? एक्सक्रीशन इज अ फंक्शन ऑफ वात दोष. So if you get up before the sun rises, or if you get up before the sun 1.5 hours, the excretory mechanism is better. That is the first thing. Second thing is we all have tube lights, bulbs nowadays. In those times, tube lights and bulbs were not there. So Surya was the only source of light 8,000 years back. मतलब थोड़े बहुत यहाँ मशाले वशाले जला देते थे, but otherwise the main source of light was the sun. And they wanted to function, they wanted to continue their day, because the sun rises and the sun sets. तो उनका दिन तो sunrise से चालू हो जाता था और sunset पे खत्म हो जाता था. Even today, if you go to remote villages, what happens is people go to the fields when the sun rises and they come back by 6:37 when the sun sets, because they can't work in the fields when the sun is not there. So उस टाइम पे ब्राह्म मुहूर्त में उठना इसलिए जरूरी था कि बाहर निकलने से पहले या हमारे काम को निकलने से पहले, लाइट में निकलने से पहले जो भी घर के पर्सनल काम हैं वो हम ब्राह्म मुहूर्त पे कर ले. We can meditate, we can do puja, we can do vyayam, we can do all sorts of things before the sun rises. Third and important thing is, everybody knows that the sun rays is made up of a virtue or a hue of colors. We have 7 colors in the sun rays: violet, indigo और वो सब up to red.
There is a frequency of light which is known as ultraviolet. There is a frequency of light which is known as infrared. So infrared frequency of light is the most healthy frequency of light. And this infrared frequency of light is only for around 1.5 hours after the sun rises. So if a person goes out, during the early time of the morning, he is able to absorb, or he is able to bath in the infrared rays. So probably these were some of the reasons why they said that Brahma Murte Uttishtet. Give me one moment. Brahma Murte Uttishtet Swastho Rakshartham Ayushah. That means ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए अगर आपको आयुष्य या स्वास्थ्य को रक्षण करना है या स्वास्थ्य को ठीक तरह से रखना है. So this is what is Brahma Muhurta. Now, who should not get up? That is not written here. इस अष्टांग हृदय में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अष्टांग संग्रह इसका जो बड़ा भाई है, which is 40 अध्याय. Fortunately, you all don't have that book in your syllabus, but we had that book in our syllabus. So who should not get up? तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयन, मतलब जिसका खाना पचा हुआ है वो उठो, जिसका खाना पचा हुआ नहीं है वो मत उठो. तो अब खाना पचा हुआ नहीं है ऐसा क्यों? बिकॉज द फूड टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट एंड टू एब्जॉर्ब, एंड द हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फूड इज इन द नाइट. रात में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज द हाईएस्ट इन द नाइट, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन इज द हाईएस्ट इन द नाइट. तो एब्जॉर्प्शन जब तक चल रहा है, जब तक आपकी बॉडी में फूड है, यू आर नॉट गेटिंग अ कॉल टू एक्सक्रीट इट आउट, डोंट गेट अप. लेकिन इसका ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि रात को इतना ही खाओ. सम पीपल से दैट, कहाँ लिखा है आयुर्वेद में कब क्या खाना चाहिए? रात को इतना ही खाओ कि सुबह तक, ब्राह्म मुहूर्त तक हम उसको पचा के डाइजेस्ट कर सकें. सो प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ब्राह्म मुहूर्त इज said to be the most important time to get up. Now the next they say is after getting up at Brahma Muhurta, Sharira Chinta Nivartyam Krut Shaucha Vidhis Tatha. Sharira Chinta. Now this Shaucha, Mala and Mutra, the stools and urine are उसको एक उपमा दी गई है. दे हैव कंपेयर्ड इट टू शरीर चिंता. एक चिंता जो होती है जो मन की चिंता होती है, एक चिंता जो होती है जो शरीर की चिंता होती है. तो दे हैव कोरिलेटेड इट विथ शरीर चिंता. चिंता मतलब क्या है? वी नीड टू सॉल्व इट इमीडिएटली. देयर इज सम इशू, वी नीड टू सॉल्व इट इमीडिएटली. तो इसीलिए ये शरीर का इशू शरीर चिंताम निवर्त्यम. निवर्त्यम मतलब पास ऑन कर दो या सॉल्व कर दो. कृत शौच विधि तथा. कैसे सॉल्व करना है? शौच विधि से. शौच विधि मतलब टू गो एंड पास स्टूल. Now here they have not mentioned urine, मतलब सिर्फ stools पास करो. But we all know that it is impossible to pass stools without passing urine. तो इसीलिए शरीर चिंता को दूर कर दो या शरीर चिंता को निकाल दो. उसके बाद उन्होंने बोला है ब्रश. टू ब्रश. हाउ टू ब्रश? समथिंग विच none of us is following, including me, none of us is following. There are many reasons why we don't follow. ब्रशिंग को दो चीजों में ये किया है, एक दंत धावन और एक दंत पवन. दंत धावन का मतलब घस घस के साफ करना, और दंत पवन का मतलब जस्ट अ रिंजिंग, और शायद उंगली से थोड़ा सा रिंज करके मसाज करके मुख को क्लीन करना. दैट इज दंत पवन. तो यहां पर उन्होंने दंत धावन बोला है. धावन मतलब अच्छी तरह से घिस घिस के साफ करना. नाउ व्हेन डिड ब्रशेस कम? ब्रशेस केम व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया 300-400 years back. Before that there were no brushes. So what people used to do, how they used to brush? They used to brush with a stick, और they used to क्या कैसे कैसे करते थे? मैंने तो लोगों को देखा है या तो नमक से ब्रश करते थे, या तो जो जली हुई राख है उससे ब्रश करते थे, या तो फिर नीम की लकड़ी या बबूल की लकड़ी लेके उसको चबा चबा के उसका ब्रश बना देते थे और फिर उससे ब्रश करते थे. सो ऑल दीज थिंग्स
are good for your mouth, for your oral hygiene. So they say that you have to brush with a stick. दंत धावन जो है वो stick से करना चाहिए. All the details are not given here, but in Ashtanga Sangraha Dinacharya Adhyay you will get all the details. उनका कहना ये है कि जो स्टिक है वो कितनी लंबी होनी चाहिए? 12 अंगुल लंबी. 12 अंगुल. द स्टिक शुड बी 12 फिंगर्स इन लेंथ. नाउ दे डिड नॉट हैव सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे. प्लस दे डिड नॉट हैव समथिंग विच इज, दे वर इंडिविजुअलिस्टिक. तो इसीलिए किसी छोटे 6 साल के बच्चे को अगर मैंने लंबी चौड़ी स्टिक दे दी तो ही विल नॉट बी एबल टू ब्रश, और किसी बड़े आदमी को मैंने 4 इंच की स्टिक दे दी तो ही विल नॉट बी एबल टू ब्रश. So that is why they say that the stick should be 12 fingers in length, wherein the first 4 or 5 fingers you get a good grip. आपको अच्छी तरह से grip मिल जाएगी, and the next 6 or 7 fingers will go into the mouth, because how much is your mouth? Your mouth is around 4 to 5 inches. Sorry, fingers of length. If you measure, it is around 4 to 5 fingers in length. So 4 to 5 fingers of the stick should go in. This is not written anywhere. ये कहीं भी, this is what we try to think over the principle. So 4 to 5 fingers inside the mouth, around 2 to 3 fingers जो mouth के अंदर भी नहीं है, जो हाथ में भी नहीं है, और 6 to 7, 5 to 6 fingers which we are holding the stick. So उससे क्या हो जाएगा? Our pressure will be better. This all relates to physics. fulcrum और वर्क डन, ये सब फिजिक्स में आपने सीखा होगा कि जितना लंबा चीज है उतना ज्यादा अच्छी तरह से आप ये कर सकते हो. What matters is where is the fulcrum. So the fulcrum should be somewhere in between. So your teeth ahead, आगे वाले जो दांत है, they will act as a fulcrum. तो स्टिक्स ऐसी होनी चाहिए. फिर स्टिक की क्वालिटीज के बारे में उन्होंने बताया है. स्टिक की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? स्टिक की क्वालिटी जो है, इट शुड नॉट बी ग्रथित. ग्रथित मतलब बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए. उसको जो लकड़ी लेते हैं उसमें बीच बीच में कोई झाड़ में गांठ आती है. तो ये गांठ आएगी तो क्या होगा? मुख को डैमेज हो सकता है, घिस सकता है, या मुख में ठीक तरह से प्रवेश नहीं कर सकता. तो गांठ नहीं होनी चाहिए. मृदु होनी चाहिए. मृदु क्यों होनी चाहिए? बिकॉज वी आर गोइंग टू बाइट द स्टिक. आगे वाला 1 या 1.5 अंगुल हम उसको बाइट करके उसका कुंचला या ब्रश बनाएंगे. तो वो जितनी नरम हो उतनी ज्यादा अच्छी. तो नरम होनी चाहिए, गांठ नहीं होनी चाहिए. उसके बाद 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए. साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कौन से रस की होनी चाहिए. नाउ रस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट चैप्टर. तो रस कौन सा होना चाहिए? उन्होंने कहा कि कटु, तिक्त और कषाय रस की होनी चाहिए. मतलब या तो तीखी होनी चाहिए, या तो कशैली, और या तो फिर कड़वी. What all toothpaste we use today are all madhur rasatmak toothpaste. That is because we don't want to submit our mouth, or we don't want to expose our mouth to something which will not be tasty the first thing in the morning. But that is wrong. Even Patanjali का जो दंत कांति आता है toothpaste, that also is sweet in taste. So ideally, if we have to follow it, see, brush is something which we can definitely use, because even Ayurveda says that you have to make the stick into a brush. So using a brush is not wrong, but using an improper paste is wrong, or using an improper powder is wrong. अब जो भी जिनको भी स्टिक नहीं मिलती थी वो क्या करते थे? वो राख से या फिर नमक से ब्रश करते थे. तो नमक से ब्रश करना कितना सही है, कितना गलत है? बिकॉज दैट इज अगेन व्हाट वाज अवेलेबल. बट राख इज अगेन कटु, तिक्त, कषाय, रसात्मक. तो राख इज व्हाट? राख इज अ वेरी नाइस एडजॉर्बेबल. कार्बन इज अ वेरी नाइस एडजॉर्बेबल थिंग. तो उससे घसना भी अच्छा हो जाता था, और जो भी कुछ बचा हुआ है वो भी हो जाता था. द ओनली प्रॉब्लम विथ योर फिंगर is it cannot go into places. It cannot go into places. दो दांतों के बीच में फिंगर नहीं जा सकता. So we have to use a brush, no problem.
but we have to use a powder which is Katu, Tikta and Kashaya Rasatmak. Okay, so this is what we can do into the brushing in today's life, because understanding what is more important is understanding the principles of 8,000 years back and utilizing those principles into how we are going to do. So maybe दाबर लाल दंत मंजन है जो तीखा होता है, या विको वज्र नदी है जो कषाय और तिक्त रसात्मक होती है. So we can use a powder for if we are sure that we will not get a नीम एक्सट्रैक्ट और नीम का पाउडर नहीं यूज करना है, तो वी कैन यूज दिस. बहुत पुराने समय में लोग नोगी का बंदर छाप काला दंत मंजन यूज करते थे. तो इवन दैट वाज व्हाट, दैट वाज राख, हाफ बर्न्ड कोल. इट वाज मेड फ्रॉम कोल. कोल में पिपरमेंट डाल के उसको बनाते थे. सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट इफ यू यूज अ पाउडर which is made of Katu Tikta Kashaya Ras, so that our oral hygiene is maintained. Katu Tikta and Kashaya Ras, इनके जो गुण हैं जो हम रसभेदी अध्याय में देखेंगे. What are these good for? कटु रस is तीखा. तीखा रस जो है वो ओरल हाइजीन या बैक्टीरिया जितने भी मुंह में हैं उनको मार देता है, जैसे पेप्सोडेंट जैसे डुशुम डुशुम करके मार देता है. तिक्त रस जो है, तिक्त रस बहुत अच्छा रोपण है. रोपण मतलब वुंड्स को हील करने वाला. तो अगर कहीं वुंड हुआ है या मुख पाक हुआ है तो उसको उस वुंड को हील करने का काम करता है. और कषाय रस जो है वो लेखन है, एक्सेसिव सिक्रीशंस को निकाल देता है. तो इसीलिए इट इज बेटर दैट वी यूज अ कटु तिक्त कषाय रसात्मक पाउडर along with a brush to brush our teeth in today's times. नाउ व्हेन दे से कि ये उठना चाहिए, जैसे किसको नहीं उठना चाहिए कुछ उन्होंने बता दिया. ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि किसको स्टूल्स पास नहीं करने चाहिए, हर एक को स्टूल पार करने चाहिए. लेकिन उठना किसको चाहिए, उठना किसको नहीं चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. नाउ सेम थिंग दे गो विथ ब्रशिंग. ब्रशिंग करते वक्त उनका कहना यह है कि किसको ब्रश नहीं करना चाहिए. तो जिन जिन को ब्रश नहीं करना चाहिए उनके उन्होंने ये दिए हैं. अजीर्ण होने पर, छर्दी रोग, छर्दी मतलब उल्टी होने पर, श्वास रोग, कास रोग विच आर बोथ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ज्वर रोग मतलब बुखार आने पर, अर्दित मतलब मुख का लकवा, अगर मुंह में लकवा मार जाए तो उसमें नहीं करना चाहिए. तृषा रोग मतलब जिसको बहुत सारी प्यास लगी है उसको नहीं करना चाहिए. मुख पाक मतलब जिसका मुंह पक गया है, यू हैव अ हैवी स्टोमेटाइटिस, उसको नहीं करना चाहिए. और नेत्र और शिरो रोग में ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए. नाउ व्हेन दे से ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, व्हाट दे मीन इज दंत धावन नहीं करना चाहिए. इट डजंट मीन दैट दंत पावन या दंत पवन, मुंह को साफ नहीं रखना चाहिए या कुल्ला नहीं करना चाहिए या उंगली से ये नहीं करना चाहिए. दैट इज नॉट द केस. दे से दैट यू डोंट हैव टू डू दंत धावन. दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करना या ब्रश का यूज करना नहीं करना चाहिए. So we have 10 minutes left. What I have done is I have placed the link of attendance in the chat box and we continue with the lecture. Why again नहीं करना चाहिए? अगर उल्टी आ रही है और हमने स्टिक से मुंह साफ कर रहे हैं, या फिर अगर मुंह में लकवा मारा है और मुंह से साफ कर रहे हैं, तो और या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के और हम मुंह से साफ कर रहे हैं, मतलब लकड़ी से साफ कर रहे हैं, तो देयर आर हाई chances that it may damage the oral mucosa or the pharyngeal mucosa more. तो इसीलिए उन्होंने ये सब चीजों में साफ नहीं करना चाहिए ऐसे बोला हुआ है. बट यस, यू कैन डेफिनेटली डू अ गार्गल, यू कैन डेफिनेटली क्लीन योर टीथ विथ योर उंगली, हाथ से. सो दंत पवन करने को उनका ना नहीं है, लेकिन दंत धावन करने के लिए उन्होंने ना बोल दिया है. One more thing which is there here is brushing will also help you in increasing the taste of your mouth, because with brushing you also clean the tongue. तो tongue सबको पता है, tongue पे क्या होता है, tongue पे foliate पेपिले होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को, they are receptive to different tastes.
सो दंत धावन के बाद आपने जबान भी क्लियर कर ली, तो उस जबान को क्लियर करने के बाद आपकी टेस्ट भी सुधर जाती है। सो आफ्टर गेटिंग अप पासिंग स्टूल्स वी हैव टू फर्स्ट क्लीन आवर माउथ. Now, if you want to do two things together, they don't mind, but clean your mouth. आंख जिह्वा को या टेस्ट को ठीक करने या टेस्ट वाले इंद्रिय को ठीक करने के बाद नाउ दे मूव टू द आई. आंखों को ठीक करना या आंखों को ठीक रखने में वो ज्यादा ये है, तो उन्होंने कहा है कि अंजन लगाओ. व्हाट इज अंजन? अंजन इज नथिंग बट सूरमा, जो हम काला काजल लगाते हैं, दैट इज अंजन. So अंजन was something which even males used to apply, आजकल नहीं करते वो, ठीक है, शाहरुख खान ने कोई पिक्चर में किया था, बट अदरवाइज पीपल आर अवर्स फ्रॉम अंजन. बट टेक इट फ्रॉम मी दैट अंजन नॉट ओनली इंक्रीजेस द विजुअल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन जो आपके पक्ष्म है या आईलिड्स हैं या जो क्या कहते हैं उसको, आईलिड्स के हेयर को क्या कहते हैं? आई लैशेस हैं, तो आई लैशेस को अच्छा रखने में फायदा करेगा. अंजन में उन्होंने दो प्रकार बताए हैं, एक सौवीरांजन और एक रसांजन. अब सौवीरांजन और रसांजन क्या है? सौवीरांजन सुवीर देश का अंजन माना गया है. बेसिकली इट इज सूरमा. तो सौवीरांजन जो है वो हल्का होता है, लेस पावरफुल होता है और रोज लगा सकते हैं. तो सौवीरांजन इज व्हाट यू कैन अप्लाई डेली. अगर आपको सौवीरांजन या सुरमा नहीं मिला तो यू कैन अप्लाई प्लेन काजल डेली. तो सौवीरांजन, और हफ्ते में एक बार रसांजन लगाने को बोला है. रसांजन इज समथिंग विच यू कैन प्रिपेयर. रसांजन जीवदया नेत्र प्रभा इज अ रसांजन, मतलब इट इज अ हेवी स्ट्रॉन्ग अंजन. यू शुड नॉट पुट जीवदया नेत्र प्रभा एवरी डे. या फिर पतंजलि का एक आता है, वो कौन सा कांति मुझे नहीं पता, लेकिन पतंजलि का दैट इज ऑल्सो, उसमें भी तीक्ष्ण द्रव्य रहते हैं. सो दैट इज व्हाट समथिंग यू कैन अप्लाई वंस अ वीक, बट डेली फॉर एप्लीकेशन सौवीरांजन इज द बेस्ट. अंजन लगाने से फायदा क्या होता है? आंखों की शक्ति बढ़ जाती है, पक्ष्म या आई लिड्स अच्छे हो जाते हैं, आई लैशेस अच्छे हो जाते हैं, तो एंड आंखों के रोग नहीं होते. रसांजन करने से क्या फायदा है? आंख जो है वो, आई डोंट नो वेदर दे हैव टॉट यू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पित्त इन क्रिया, बट पित्त के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है आलोचक पित्त, जो आंखों में रहता है. अब पित्त और कफ का तो 36 का आंकड़ा है. तो कफ जहां ज्यादा जमा होता है वहां पर शीत गुण बढ़ जाता है और अपना जो पित्त है वो कम होना चालू हो जाता है. तो इसीलिए हफ्ते में एक बार जमा हुआ कफ जो है उसको निकालना रसांजन के बेसिस पे या रसांजन के माध्यम से. बाय यूजिंग रसांजन वी हैव टू रिमूव द कफ which is accumulated in the eyes once a week. Now, how do you differentiate between Sauviranjan and Rasanjan, which is a very important, because many of the medical representatives will come and tell you that sir ये अंजन है, ये बहुत अच्छा है आंख के लिए, ये है वो है, ऐसे दुनिया भर की चीजें बता के जाएंगे. हाउ डू यू डिफरेंशिएट? सिंपल सा चीज है, रसांजन लगाने से व्हाट संग्रह सेज और व्हाट हृदय सेज, अष्टांग हृदय में बताया है कि रसांजन लगाने से कफ का स्राव होता है. दैट मीन्स you will get lacrimation, your eyes will bleed tears, I will remove tears from the eyes. तो आंखों में बहुत सारा पानी आना, ये रसांजन या उस प्रकार के अंजन का we need not get. रसांजन शायद आज की तारीख में मार्केट में मिलेगा भी नहीं या रेयरली मिलेगा, बट वी कैन यूज समथिंग विच विल रिमूव टीयर्स और क्लीन द tear sac of the eye so that the eye is very nicely hydrated. जबकि सौवीरांजन लगाने से we don't get much hydration. हमको काजल लगाने के बाद बहुत सारा पानी नहीं आता आंख से. सो दैट इज सौवीरांजन टाइप, जिसको हम आंख में तो लगाते हैं. सौवीरांजन इज मोर ऑफ अ स्निग्ध टाइप, मंद टाइप, whereas रसांजन इज मोर ऑफ अ तीक्ष्ण टाइप.
वो इट इज अ वेरी शार्प अंजन जिससे इरिटेशन होती है आंखों में। तो रसांजन लगाने के बदले एसिड मत डालो, बट यू कैन यूज समथिंग। रसांजन की जगह पे वी कैन, इट इज वेरी वेल नोन दैट इवन यूजिंग हनी या अदरक का नहीं सॉरी कांदे का रस, ये सब चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। बट यू गेट अ लॉट ऑफ medicines in the market which act as good as रसांजन। अब रसांजन किसको, या रसांजन के फायदे क्या हैं, तो कफ और कफ दोष को निकाल देता है। तो फिर अंजन किसको नहीं करना चाहिए, ये अगेन अष्टांग हृदय में नहीं बताया है, लेकिन अंजन उन आदमी को नहीं करना चाहिए जिसको नाक से पानी आ रहा है या जिसको सर दर्द हो रहा है। सो इफ ही इज ऑलरेडी इरिटेटेड इन द हेड, you are irritating him more with an anjan, and this we are talking about rasanjan, we are not talking about sauviranjan. If you are irritating him more, his symptoms or his तकलीफ will increase। तो इसीलिए अंजन ऐसे आदमी को नहीं करना चाहिए जिसके नाक से पानी आ रहा है, जो साइनसाइटिस का पेशेंट है या फिर जिसका सर दर्द कर रहा है, तो उसमें अंजन नहीं करना चाहिए। व्हाट वी डू इज वी स्टॉप हियर फॉर अंजन, नस्य, गंडूश, कवल, धूम। फ्रॉम हियर वी विल टेक, दिस इज ओनली अ 5 स्लाइड चैप्टर, सिर्फ 5 स्लाइड में खत्म हो जाएगा। उसमें से भी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई एम नॉट गोइंग टू टीच बिकॉज यू आर गोइंग टू रीड एंड यू आर गोइंग टू डिस्कस। सो वी विल फ्रेम 2 ग्रुप्स नेक्स्ट टाइम, 5 people each who will read the chapter सद्वृत्त जो बताया गया है, and then we will discuss. What we are going to discuss here is only the different कर्म which are mentioned as, जैसे तांबुल सेवन है, मालिश करना है, स्नान करना है, ये सब हम करेंगे। मानस कर्म जो है, मानस कर्म, ये we will discuss individually. So if there are any questions, we will extend this meeting. If there are no questions regarding what has to be done, then we will stop here. This is open to questions. Okay, so one question is, अंजन बात से पहले या बाद में? अंजन का ऐसे है कि आप बात के बाद, बिकॉज अंजन इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू गो आउट। जो भी आप अंजन, हाँ, रसांजन जो है वंस अ वीक जो करना है वो 100% बात के पहले, बट इफ यू आर डूइंग अ सौवीरांजन यू कैन डू इट आफ्टर बात ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। And try to follow all these things, it will help you. The meeting is going to end in 1 minute. If there are any more questions, we'll extend, no problem. सर हाँ सर सौवीरांजन है वो में प्रोडक्ट मिलते हैं, वो सौवीरांजन है रसांजन है? what I'll answer this question, we'll extend the meeting. I'll answer this question, we'll extend the meeting 1 minute. Okay, so the question was, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सौवीरांजन या रसांजन से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? राइट, करेक्ट ना? और तो कोई क्वेश्चन नहीं था? हाँ, तो मैंने जैसे पहले भी बता दिया कि अंजन जो है वो आंख में डालने के लिए वी हैव अ कंप्लीट बिग चैप्टर ऑन अंजन एट द लास्ट। इसी बुक के लास्ट में अंजन के प्रकार, अंजन कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब डिटेल में है। राइट, फॉर नाउ व्हाट आई कैन से इज अंजन इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज अ अंजन विच वी कैन डू डेली, वन इज एन अंजन विच वी शुड नॉट डू डेली। तो उन्होंने सौवीरांजन जो है वो सुवीर देश से आया हुआ अंजन, उसको सौवीरांजन कहते हैं। दिस इज यूजुअली स्निग्ध एंड दिस इज यूजुअली नेत्र प्रसादन। प्रसादन का मतलब है कैपेसिटी बढ़ाने वाला या आंख को अच्छा लगने वाला। तो जब हम काजल लगाते हैं या कोई स्निग्ध चीज लगाते हैं तो हमारे आंख को एक अच्छा आह्लाद देता है, वी फील हैप्पी इन अवर आईज, अच्छा लगता है। तो देखने के लिए नहीं, हाँ, हमको फील करने के लिए। So that something which will not irritate the eye, something which will not irritate the eye, we can classify it, but at the same time benefit the eye. It will not irritate the eye but benefit the eye. We can classify it as Sauviranjan. It need not be black. ऐसा नहीं है कि काजल लगाने को बोला है तो काला ही कोई चीज होना चाहिए। It may not be black.
आज भी बरेली के सुरमे बहुत फेमस है, बरेली के सुरमे बहुत फेमस है। उसमें से बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे ममीरा है, तो ममीरा इज अ चक्षुष्य ड्रग, आंख को फायदा करने वाला। तो वैसे बहुत सारे ड्रग्स से जितने भी अंजन बनते हैं वो हम रोज लगा सकते हैं। इट शुड नॉट नेसेसरली बी ब्लैक, इट कैन बी श्वेत अंजन भी होता है। तो something which will make the eye happy, make the eye seeing pleasant is Saviranjan, और we can correlate it with Saviranjan। और ऐसे कुछ अंजन होते हैं जो आंख में डालने के बाद दिव्या भारती की जैसे नाचने का मन करता है, बहुत इरिटेशन होती है, जलन होती है, आंख से बहुत सारा पानी आता है। तो ऐसे अंजन जो है वो हम रसांजन में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रसांजन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आंख में से ज्यादा कफ दोष को निकाल देना। इवन इफ वी सी व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हमारे आंख के साइड में देयर इज अ लॉट ऑफ स्लफ विच एक्यूमुलेट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लफ विच एक्यूमुलेट्स। व्हाट इज दैट? दैट इज कफ। जो मलभूत कफ होता है, जिसको ख मल कहते हैं, मतलब आंखों से या कानों से निकलने वाला जो मल है उसको ख मल कहते हैं। तो ये जो खमल है, ये जितना निकल गया उतना निकल गया, लेकिन थोड़ा सा फिर भी रहता है। तो मतलब जैसे दिवाली की सफाई करते हैं हम साल में एक बार, वैसे ही वीक में एक बार रसांजन करने से व्हाट हैपेंस इज, व्हेन द आई इरिटेट्स देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लशिंग, आंखों में बहुत सारा पानी आ जाता है। एंड दिस फ्लशिंग इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन संविरांजन एंड रसांजन। A slight flushing or non-irritative flushing, you will come into Saviranjan, and a irritative flushing or a deep flushing is what can be correlated to the Rasanjan। तो अगर आपको डाउट है कि कौन सा चीज आंख में कैसे जाता है, तो सिंपल है, आंख में एक बूंद डाल के देखो, अगर आपको नाचने का मन करे तो दैट इज कोरिलेटिंग विद संविरांजन, और दैट इज फंक्शनल एज संविरांजन। अगर आपको नाचने का मन नहीं करे, अच्छा लगे, तो दैट इज कोरिलेटेड, सॉरी, दैट इज कोरिलेटेड विद रसांजन। अगर आपको अच्छा लगे तो दैट इज कोरिलेटेड विद संविरांजन। एनी मोर क्वेश्चंस? और इफ आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड, यू कैन इवन रिपीट और आस्क सम अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू अंजन। सर हम देखते हैं मोस्टली छोटे बच्चों को ज्यादा ये अंजन लगाते हैं, इसी वजह से ना कि उसमें कफ दोष डोमिनेटिव होता है। करेक्ट, कफ दोष डोमिनेटिव होता है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज उनके इंद्रिय ग्रो हो रहे हैं, उनके इंद्रिय ग्रो हो रहे हैं, तो जो ग्रो हो रहा है उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इट इज नॉट दैट सिर्फ छोटे बच्चों को ही लगाना चाहिए, बड़े भी लगा के निकले अंजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास करके संविरांजन जैसा कुछ। एंड इट इज रियली फाउंड दैट दोज हु डू अंजन डेली, उनमें कैटरैक्ट या तो बहुत समय बाद डेवलप होता है। मतलब सुश्रुत ने तो ये भी कहा है कि जो रेगुलर अंजन करने वाले लोग हैं उसमें लिंगनाश इज कैटरैक्ट, लिंगनाश होता ही नहीं। बट दैट इज नॉट अगेन फाउंड राइट नाउ। कैटरैक्ट इज अ डिसीज विच कम्स अकॉर्डिंग टू एज, और एज के हिसाब से किसी को 40-45 एज में आ जाता है, किसी को 60-70 एज में आ जाता है। तो जितने भी अंजन करने वाले हैं उनको आंख की तकलीफें कम होती हैं, उनके आंख ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। Any more questions? Sir, who should not do Saviranjan? What are the symptoms? संविरांजन जो है वो उन रोगियों में नहीं करना चाहिए जिनको आंख में कोई तकलीफ है। इफ ऑलरेडी यू हैव कंजंक्टिवाइटिस, सो योर आई इज इन्फ्लेम्ड, तो ऐसे कंडीशंस में संविरांजन नहीं करना चाहिए। बट अदरवाइज आप संविरांजन रेगुलरली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, देयर आर 3 more questions in the chat box. Who should not brush teeth? Can you please repeat? Okay, brush teeth. Those people should not brush the teeth जिनको या तो inflammatory condition, see inflammation में अगर आप कोई भी additional procedure करोगे तो that will increase the inflammation. So those who have increased inflammation in the mouth, for example, it may be a mouth ulcer, it may be stomatitis, or you have pharyngeal inflammation as in upper respiratory tract infection, or you may have
कोई वेग आने वाला है, उल्टी आने वाली है, बार बार छींकने वाला आदमी है, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा कि ब्रश करते करते वो जो लकड़ी है या जो ब्रश है वो अंदर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए उस समय पे भी जिसमें there is a chance that you can damage yourself or hurt yourself, ब्रश नहीं करना चाहिए। एट दैट टाइम यू कैन यूज दंत पवन। दंत धावन इज ब्रशिंग वेरी थरली। दंत पवन मतलब जैसे हम खाना खाने के बाद सिर्फ उंगली से दांत और मसूड़ों को ये कर लेते हैं गोल गोल, फिर कुल्ला करते हैं जोर जोर से, so that is danta pavan, in which we are not using some external thing or we are not using a apparatus or an instrument, external instrument to brush your teeth। उंगली जा जाके कितना जाएगा, उंगली से कितना डैमेज होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए दंत पवन इज डन इन दोज वेयर दंत धावन कैन नॉट बी डन। बट दंत पवन जो है ये हमको आफ्टर एवरी मील भी करना चाहिए, आफ्टर एवरी मील भी करना चाहिए। हमारे मील में व्हाट वी द वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल व्हाट दे से कि हाथ धोने को भी आप बेसिन तक मत जाओ, आपके यहीं वो फिंगर बाउल आ जाएगा और आप उसी में हाथ धो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि बेसिन जाना सिर्फ हाथ धोने के लिए नहीं है, कुल्ला करने के लिए भी है, विच हैज टू बी डन। हम क्या करते हैं, हम टिश्यू पेपर लेते हैं और होंठों को पोंछ लेते हैं, बट the oral region or the region of the mouth is also something which requires good hygiene, और अगर उसमें फूड पार्टिकल्स जमे हुए रहें तो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज मोर। और ये सब मैं समझाने का जरूरत ही नहीं, इतने साल से पेप्सोडेंट और ये सब समझा ही रहे हैं। सो व्हाट दे आर टेलिंग इज नॉट रॉन्ग, बट व्हाट दे आर प्रपोजिंग इज रॉन्ग। दे आर टेलिंग द राइट थिंग। मेरे बचपन में भी जब कोलगेट टूथ पाउडर फर्स्ट टाइम आया था, उसके पहले हम नोगी का बंदर छाप काला दंत मंजन यूज करते थे। जब फर्स्ट टाइम यू गो टू यूट्यूब, चेक आउट द कोलगेट टूथ पाउडर एडवर्टाइज, वो एक बड़े से कांच की शीट पे एक जगह पर वो काला दंत मंजन रखते थे, एक जगह पर वो कोलगेट टूथ पाउडर रखते थे और उससे ऐसे 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 घिस देते थे और फिर फूंक मार देते थे। तो जहाँ काला दंत मंजन है वहाँ स्क्रैचेस आ जाते थे, जहाँ टूथ पाउडर है वहाँ स्क्रैचेस नहीं आते थे। और फिर वो बोलते थे कि खुरदरे और दानेदार पदार्थ दांतों और मसूड़े में सड़न पैदा कर सकते हैं, बारीक सफेद कोलगेट टूथ पाउडर से मसूड़े स्वस्थ और मुंह ताजा। तो ये सब चीजें जो हैं, these are all advertising gimmicks. We have seen that the requirement of dentists have increased. Why? My grandfather did not require a dentist all his life because he was brushing till his death with the same kala tantamanjan. I am not propagating kala dantamanjan, but I am saying that you have to change the way we brush. और कोई? सर मुख पाक है वो स्टोमेटाइटिस है ना? स्टोमेटाइटिस है, मुख पाक की स्टोमेटाइटिस in which the internal mucosal layer is severely inflamed. You either feel बहुत तीखा लगता है, कुछ भी खाने से इरिटेशन बढ़ जाता है, तीखा लगता है, और अगर साइड में गाल में या इसके नीचे जबान से अगर आप टच करो तो थोड़ा सा ऐसे विचित्र लगता है, जाड़ा जाड़ा लगता है, दैट इज मुखपाक। यू कैन हैव रेडनेस इन योर माउथ, दैट इज मुखपाक। वन मोर बेनिफिट ऑफ डूइंग दंत धावन एंड दंत पवन इज ये जो आपके गम्स हैं, गम्स में भी मसाज हो जाता है, एंड एनीवेयर वेयर वी मसाज द सर्कुलेशन इंक्रीजेस। तो दंत दार्ढ्य मतलब दांतों का अपने रूट में कस के बैठ जाना, जो इस एडवर्टाइज में आता था। एक लॉन्ग वाली टूथपेस्ट होती थी, क्लोजअप नहीं, पामोलिव नहीं, फोरहेंस नहीं, एक क्लव ऑयल वाली प्रॉमिस टूथपेस्ट होती थी। तो प्रॉमिस टूथपेस्ट के एडवर्टाइज में वो बताते थे कि हमारे टूथपेस्ट में लौंग का तेल है जिसमें आपके मसूड़े कस जाएंगे, आपके दांत जो हैं वो फिट बैठ जाएंगे। तो see, using clove oil is not bad, it is good for the teeth, but using clove oil in a sweet base is bad. Pepsodent में भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो दांत के लिए अच्छा होगा, but the foaming agent, the sweet taste is all bad. Any more questions? सर आपने बोला था कि रसांजन में कफ दोष दूर होगा, कफ दोष तो निकल जाता है या कफ दोष कम हो जाता है। सिमिलरली सविरंजन में कौन सा दोष दूर होगा? संविरंजन इज फॉर बैलेंसिंग। संविरंजन भी होता कफ के लिए ही, सब प्रकार के अंजन कफ के लिए ही होते हैं,
मतलब कुछ रोपण अंजन होते हैं, कुछ लेखन अंजन होते हैं, तो दैट वी विल सी इन द लास्ट 10 चैप्टर्स। बट ओवरऑल संविरांजन का बेसिक एम है नेत्र प्रसादन, मतलब टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द आई, वेरेस रसांजन का कफ का निकालना, ये बेसिक एम है रसांजन का, टू फ्लश द आई। ओके सर, थैंक यू। नो अदर क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से नेवी का खत्म हो जाता है तो किसी और का कोई, अच्छा कल के एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चंस है? आपको मूडल पे आयुष कामी अध्याय के नीचे एक लिंक दिख जाएगा जिसमें क्विज लिखा हुआ होगा, शायद आज शाम से ही दिखना चालू हो जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट टिल 11:30 टुमारो। जैसे ही कल 11:30 बज जाएंगे तो वो लिंक खुल जाएगा, मतलब व्हेन यू गो स्टार्ट द टेस्ट का बटन आ जाएगा, तो उसके बाद आप टेस्ट के अंदर जा सकते हो। देयर विल बी 40 क्वेश्चंस which you have to attempt in 30 minutes, that is 40 seconds per question approximately, so 40 to 45 seconds, so you have to attempt in 30 minutes. ये टेस्ट जो है, this is not related to your final marks or something. What I am checking is how good I have explained. This is, you are giving the test but the result is of me, मेरा रिजल्ट है, ऐसे पकड़ के चलो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और टेस्ट दे दो। देर इट माइट सो हैपन दैट अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है या बहुत सारे बच्चे एक साथ मूडल पे चले गए तो शुरुआत में टेस्ट क्रैश हो सकता है। एक बार खुल गया तो खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट क्रैश हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर इज नो एंड टाइम, मतलब भले मैंने एंड टाइम व्हाट्सएप पे लिखा है बट देर इज नो एंड टाइम फॉर द टेस्ट। जैसे ही एक आदमी का खुल जाएगा वो सॉल्व करना चालू कर देगा तो अपने आप दूसरे आदमी का भी बाद में खुल जाएगा। कीप ट्राइंग, द मोमेंट इट ओपन, एक बार ओपन होने के बाद 30 मिनट में वो क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका 11:30 बजे नहीं खुला, अगर आपका 11:35 को खुला तो वो 12:05 तक चलेगा, अगर आपका 11:40 को खुला तो वो 12:10 तक चलेगा, ठीक है। सो इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, don't try to copy from one another because each question we have a question bank, तो हर एक क्वेश्चन हर एक आदमी को अलग आएगा। मतलब अगर आप पूछोगे 2 नंबर का आंसर क्या है तो आपका 2 और किसी और का 2 अलग अलग होंगे। नॉट ओनली दैट, वी हैव ऑल्सो शफल्ड द आंसर्स। तो अगर आपने बोला अगर किसी का 2 नंबर सेम भी है, मतलब आपका जो 2 है वही मेरा 2 है, तो मेरा जो ए आंसर है वो आपका ए आंसर नहीं होगा। So do, and it is a very easy test because the first chapter is itself easy. तो बस फर्स्ट चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स को एक बार चाहिए तो देख लीजिए, एंड एवरीबडी विल बी पासिंग, दैट इज 100%. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरीज ऑन द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एनीबडी हैज एनी क्वेरी ऑन द पेपर यू कैन आस्क. I hope everybody has access to Moodle. Moodle का access तो हर एक के पास होना चाहिए, because without logging into Moodle, you will not be able to give the test. Again, the test is not compulsory. This is not a college test. This is an individual test by the teacher. It is not compulsory. Yes, paper English में और कुछ वर्ड संस्कृत मतलब देवनागरी में आएंगे, जैसे अभी पवन है या वात है तो वो देवनागरी में लिखा हुआ हो सकता है. But because your final examination question paper is going to come in English, you have to understand or start understanding English. And I hope everybody of you knows English. Okay, so thank you so much for attending the lecture and have a very nice day. Thank you again for coming to the extended part of the lecture.